In the name of Allah, the Rahman, the Rahim, dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is Chomsky and mentalism. Dear students, as we have discussed behaviorism by B.F. Skinner, so in today's class we are discussing mentalism by Chomsky. Dear students, as we know that we are having different theories of learning in psycholinguistics like behaviorism, mentalism, and cognitivism. So in today's class, we are discussing mentalism. Mentalism is proposed by Noam Chomsky. Noam Chomsky challenged to behaviorism. Like dear students, let's revise what is behaviorism. B.F. Skinner and his colleagues, a group of psycholinguists known as behaviorists, okay, they proposed a theory which is believed on that learning a language is no different from learning anything else. It becomes a habit formed by the stimulus response, reinforcement, and repetition process. Okay, they believe that learning is a habit formation. Okay, they are saying that we are learning language through assimilation, through imitation of things. Okay, but Noam Chomsky is he is disagree with the theory which is proposed by B.F. Skinner. In 1959, Noam Chomsky launched an attack on B.F. Skinner's work. He made two criticisms. The first one, the behavior of rates in boxes is irrelevant to human language. Dear students, इस तरह के हम जानते हैं कि B.F. स्किनर ने रेट्स पे एक्सपेरिमेंट्स की थी, ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया जो उनकी थ्योरी है स्टिमुलस रिस्पांस, positive reinforcement, repetition, and then becomes a new behavior. ठीक है. So नाम चॉम्स्की कहते हैं कि behavior of rates in boxes is irrelevant to human language. ठीक है. Animal पे एक्सपीरियंट आपने किए हैं जो कि irrelevant है human language के लिए. ठीक है. Skinner fundamentally misunderstands द नेचर ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. स्किनर कहते हैं कि लैंग्वेज को हम थ्रू इमिटेशन, थ्रू प्रैक्टिस सीख सकते हैं, लेकिन चॉम्स्की कहते हैं कि नहीं, लैंग्वेज के लिए एक इनेट कैपेसिटी है, एक फ्रेमवर्क है माइंड में. ठीक है. मेंटल थॉट्स जहाँ से जनरेट होते हैं, ये मेंटल एक्टिविटी है. लैंग्वेज मेंटल एक्टिविटी है. ठीक है. ये डिफरेंट है अदर लर्निंग से. ठीक है. जिस तरह के हम बाईसाइकिल सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, अदर स्किल्स हम सीखते हैं. सो B.F. स्किनर कोई डिफरेंस नहीं बताते. ठीक है. लेकिन चॉम्स्की कहते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन और अमंग अदर एक्टिविटीज ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज लर्निंग. ठीक है. चॉम्स्की एंड द मेंटलिस्ट्स. Noam Chomsky and his colleagues, a group of psycholinguists known as mentalists. ठीक है. What did Chomsky offer in place of behaviorism as an explanation of language learning? ठीक है. उन्होंने language learning को explain किया है. He subscribed an entirely different view of learning from that of the behaviorists. उनके against जाते हैं. ठीक है. He followed a mentalist approach based on cognitive learning. वो cognitive learning का जिक्र करते हैं कि language learning जो है ये cognitive ability है. ठीक है. इसका ताल्लुक है cognition के साथ, mental processes के साथ mental thoughts के साथ. ठीक है. अच्छा, mentalists किस तरह language को view करते हैं? They relate language to cognitive learning. वो कहते हैं कि ये कॉग्निशन से रिलेटेड है, ये कॉग्निटिव लर्निंग है. लैंग्वेज जो है ये सिंपल लर्निंग नहीं है जिस तरह के अदर स्किल्स हम सीखते हैं. ठीक है. लाइफ में दे रिलेट लैंग्वेज टू कॉग्निटिव लर्निंग. अब कॉग्निटिव लर्निंग क्या है? कॉग्निटिव लर्निंग मीन्स द वे in which we relate new thing
event are items of knowledge to the concepts which are already developed, which are already present in our mind. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे माइंड में मौजूद है, डेवलप्ड है. ठीक है, जब हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं या न्यू आइटम देखते हैं या सुनते हैं, या एक इवेंट जो हम जिससे गुजरते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम रिलेट करते हैं उस आइटम के साथ जो ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है हमारी माइंड में. ये मेंटलिस्ट अप्रोच है. ठीक है, कि कॉग्निटिव लर्निंग मीन्स द वे इन विच वी रिलेट न्यू थिंग, event or items of knowledge to the concepts which are already present in our mind. So mentalists take help from mind. Okay, mentalism means a belief in which mind and thought processes are involved, in which mind and thought processes are involved. ये एक बिलीव है जिसमें माइंड और थॉट प्रोसेसेस को क्या है, मुदाखलत है. मेंटलिज्म, यहाँ पर मेंटलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक एनालॉजी पेश की जाती है. लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, एनालॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल कहते हैं बी एफ स्किनर, नॉम चॉम्स्की, कि ये इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लिंग्विस्ट्स ने एक एनालॉजी पेश की है. कहते हैं कि बिल्डिंग अ हाउस, आप इस तरह कंसिडर करें कि बिल्डिंग अ हाउस, जिस तरह कि हम एक हाउस को बिल्ड करते हैं ना, ईच कंपोनेंट ब्रेक्स लाइक फाउंडेशंस, वुड वर्क, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क जो हम करते हैं, एक इमारत को हम खड़ा करते हैं, ऑल आर फिट टुगेदर इन दियर करेक्ट प्लेसेस. जो भी हम कंपोनेंट लेते हैं बिल्डिंग में, हम करेक्ट प्लेस पे वो क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, फिट करते हैं. ठीक है, लर्निंग आइटम्स आर इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स. अब यहाँ पर रिलेट करते हैं कि एक ऑलरेडी आइटम अवेलेबल है. ठीक है, हमारे माइंड में जब हम न्यू आइटम को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम वो करेक्ट प्लेस पे क्या करते हैं, फिट करते हैं. जिस तरह कि हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स हम करेक्ट प्लेस पे बिल्ड करते हैं. हम एक लाइक हाउस को बिल्ड करते हैं. इसी तरह जब हम एक आइटम, नया आइटम सीखते हैं, तो हम रिलेट करते हैं उस आइटम के साथ जो ऑलरेडी हमारे माइंड में क्या है, मौजूद है, प्रेजेंट है. सो लर्नर क्या करता है, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क का यहाँ पर जिक्र है. एज लर्नर रिसीव्स ईच न्यू आइटम, ही मैचेस इट अगेंस्ट द items which are already received or experienced by him. He creates a place within the framework for each new item. ठीक है, कहते हैं कि वो एक फ्रेमवर्क जो ऑलरेडी उसकी माइंड में डेवलप है, जब वो न्यू आइटम को रिसीव करता है तो वो उसके साथ फिट करने की कोशिश करता है, मैच करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एक फ्रेमवर्क बनाता है माइंड में. इन एजुकेशनल साइकोलॉजी द वेल ऑर्डर्ड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क. ठीक है, ये एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है कि जो इंफॉर्मेशन आते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन, उसको हम एक ऑर्डर देते हैं माइंड में. ठीक है, एक मैचिंग करते हैं माइंड में न्यू को ऑलरेडी इस्टेब्लिश, ऑलरेडी डेवलप और प्रेजेंट और एक्सपीरियंस्ड आइटम के साथ. तो इसका क्या है, ये एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बनता है हमारी माइंड में. जी, चॉम्स्की एंड द मेंटलिस्ट्स, they claim that a child learns his first language through cognitive learning के साथ. जब बच्चा फर्स्ट L1 मदर टंग सीखता है ना, तो वो क्या करता है, वो किस तरह सीखता है, कॉग्निटिव लर्निंग के साथ सीखता है. वो हर आइटम, हर साउंड को, हर आवाज को, हर लफ्ज को वो क्या करता है, रिलेट करता है जो ऑलरेडी उसके साथ एस्टेब्लिश्ड है. इसी तरह आप देखिए, छोटा बच्चा है, ठीक है,
2-3 इयर्स का या 2 इयर्स का एक बच्चा है, उसको एक वर्ड का पता है, ठीक है, जस्ट बिस्किट वर्ड उसको मालूम है। तो हर हर जो चीज़ वो देखता है वो इतलाक करता है उस पे बिस्किट बिस्किट का, हर चीज़ को बिस्किट, क्योंकि वो रिलेट करता है उस चीज़ को, उस आइटम को उस वर्ड के साथ जो उसके साथ ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। सो इसी तरह चाम्स्की भी ये क्लेम करते हैं, चाम्स्की और मेंटलिस्ट, ठीक है, मेंटलिस्ट वो लोग हैं जो चाम्स्की के फॉलोअर्स हैं या उसके कलीग्स हैं, ठीक है, उसकी मानने वाले हैं। दे क्लेम दैट अ चाइल्ड लर्न्स his first language through cognitive learning. They claim that language is governed by rules and it is not a haphazard thing. Disorder इसमें नहीं है, ठीक है, haphazardly नहीं आता, जिस तरह की as Skinner and his followers are given, जिस तरह की चार्ल्स B.F. स्किनर ने बिलीव दिया है कि नहीं, हैपहेजेडली हम लर्न कर सकते हैं जिस तरह की अदर स्किल्स हम लर्न करते हैं, ठीक है। चाम्स्की कहते हैं कि नहीं, ये डिफरेंट है, हैपहेजेडली अदर स्किल्स की तरह हम लैंग्वेज को नहीं सीखते, ठीक है, ये रूल गवर्नड है। क्या है? रूल गवर्नड है, कुछ उसूल और कवानीन के तहत हम लैंग्वेज को सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू चाम्स्की, द चाइल्ड इज बर्न विद अ मेंटल कैपेसिटी फॉर वर्किंग आउट द अंडरलाइनिंग सिस्टम to the jumble of sounds which he hears. कहते हैं कि एक सिस्टम के साथ, मेंटल कैपेसिटी के साथ, मेंटल एक इनेट कैपेसिटी है, उसके साथ ये गॉड गिफ्टेड कैपेसिटी है। हर जो बच्चा पैदा होता है वो इस कैपेसिटी के साथ पैदा होता है, क्योंकि उसके माइंड में अगर ये कैपेसिटी ना हो, ये इनेट मेंटल कैपेसिटी अगर मौजूद ना हो, तो लैंग्वेज को वो सीख नहीं सकता। ये इंटरनल मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म के साथ वो बच्चा क्या होता है, पैदा होता है, तो उसमें वो लैंग्वेज को स्टोर कर सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी है, ये ताकत है कि वो लैंग्वेज को क्या कर सके, स्टोर कर सके, क्योंकि उसके साथ एक एबिलिटी मौजूद है ना। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट लैंग्वेज तो हम कॉग्निटिव एबिलिटी के जरिए सीखते हैं, थर्ड लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज जो हम सीखते हैं वो किस तरह हम सीखते हैं? इसका आंसर ये है कि दूसरा लैंग्वेज हम नहीं सीखते, हम एक ही लैंग्वेज सीखते हैं जो मदर टंग है। इन केस ऑफ अस, पश्तो इज और फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। ये जो हम इंग्लिश सीखते हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग पर्शियन, उर्दू, अरेबिक लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज जो हम लोकल लैंग्वेजेस सीखते हैं, ये कहते हैं कि डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टंग है ना, फर्स्ट लैंग्वेज है, उसमें कुछ न्यू एडिशन हो जाता है, ठीक है। ये नया लैंग्वेज हम नहीं सीखते, उसमें एक नया लेयर बन जाता है, एक नया उसमें हम एक अवर डिज़ाइन बना लेते हैं, ठीक है। यस, सो चाम्स्की का स्टांस ये है कि बच्चा बर्न होता है विद इनेट मेंटल कैपेसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कहते हैं कि मेंटल ग्रामर के साथ बच्चा पैदा होता है। अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन मेंटल ग्रामर and imposes it on all the sounds reaching his brain. एक मेंटल ग्रामर बच्चा खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। इनेट कैपेसिटी तो ऑलरेडी मौजूद है ना, बच्चा उसके लिए एक मेंटल ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। जो भी साउंड, न्यू साउंड उसको आता है वो उसमें रिलेट करता है, ठीक है, या इम्पोज करता है। दिस मेंटल ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। अच्छा, ये मेंटल ग्रामर वैसे नहीं बनता, ये कॉग्निटिव फ्रेमवर्क क्या है, पार्ट है। कॉग्निटिव फ्रेमवर्क तो जानते हैं ना, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि जो लर्निंग हम करते हैं, यानी जो नया आइटम हम सीखते हैं, हम रेफर करते हैं उस आइटम को ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आइटम के साथ, ठीक है। इस प्रोसेस को, इसके ज़रिए हम एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बनाते हैं और कॉग्निटिव फ्रेमवर्क के अंदर एक मेंटल ग्रामर तैयार किया जाता है, बच्चा खुद ही तैयार करता है, ठीक है, बनाता है। दिस मेंटल ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क
and nothing he hears is stored in his brain until he matched it against what he already knows and found a correct in his cognitive framework. ठीक है, बच्चा वैसे चीज़ें नहीं सीख सकता जब तक वो रिलेट न करे, जब तक वो रेफर न करे ऑलरेडी इस्टेब्लिश नॉलेज के साथ. ठीक है. Language acquisition device laid. Chomsky says language is very complex phenomenon. Yes, it cannot be acquired in very short time. He argued that the only explanation is that the child is born with some innate mental capacity which helps the child to process all the language which he hears. This innate mental capacity is called language acquisition device. Language acquisition device. जिस मेंटल इनेट मेंटल कैपेसिटी के साथ बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? Language acquisition device are laid, LAD, a special area of brain functions in processing a language. यहाँ पर चॉम्स्की क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं. किससे? डिफरेंट जाते हैं, डिफरेंटली व्यू करते हैं लैंग्वेज को बिहेवियरिज्म से, बिहेवियरिस्ट थ्योरी से वो डिफरेंशिएट करते हैं. कहते हैं कि क्या है? बिहेवियरिज्म का स्टांस ये है कि लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस. लैंग्वेज कम्स थ्रू practice. Language comes through like repetition. Okay, stimulus, response, repetition in new behavior पैदा होता है. ठीक है. लेकिन बिहेवियर चॉम्स्की कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर इस तरह है कि बच्चा का लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटी है, कॉग्निशन उसमें इन्वॉल्व है, मेंटल थॉट्स उसमें इन्वॉल्व है, मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, माइंड इन्वॉल्व है. ठीक है. कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बच्चा बनाता है. कॉग्निटिव लाइक एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है. फिर फ्रेमवर्क में कॉग्निटिव फ्रेमवर्क का जिक्र वो करते हैं. आई होप कि आप लोग जानते हैं कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या होता है? चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा मेंटल ग्रामर इस्टेब्लिश करता है. कहाँ पर? कॉग्निटिव फ्रेमवर्क में. ठीक है. अच्छा, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है किसके साथ? इनेट मेंटल कैपेसिटी के साथ. और इस इनेट मेंटल कैपेसिटी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं. ठीक है. जो कि एक स्पेशल एरिया है ब्रेन में. क्या है? एक स्पेशल एरिया है ब्रेन में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, नॉट फॉर अदर स्किल्स. ओके, ये इसका अलग फंक्शन है. लैंग्वेज लर्निंग एक अलग फंक्शन है. ठीक है, माइंड का, ब्रेन का. जो अदर एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जिस तरह की हम मतलब टाइपिंग सीखते हैं, हम अदर स्किल्स सीखते हैं, हम बाईसाइकिल सीखते हैं, हम कार चलाना सीखते हैं. ठीक है. या हम जंपिंग सीखते हैं, हम स्विमिंग सीखते हैं. दीज आर अदर स्किल्स एंड आवर ब्रेन, अदर पार्ट्स आर like responsible for learning these things, but there is special capacity, special area in our brain which is called language acquisition device, which is responsible for language learning. Okay, because Chomsky views that language is a cognitive ability, it is a cognitive phenomena, it is very complex phenomena, it is not learned in haphazard manner because it is rule governed process. While on the other hand, behaviorism, they believe that language is learned haphazardly. Language is learned as like we are learning other skills. Likewise, we are learning other skills. Okay, but Chomsky makes this distinction between language learning and other skills learnings. Dear students, if you are having any question, you can ask in comments. I'll upload inshallah other videos on these both, like what are the differences between the two theories of language learning. These are behaviorism and mentalism. इस पे एक और लेक्चर भी हम लेंगे. अगर कोई मसला हो, कोई भी मुश्किल हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में. अस्सलामु अलैकुम.